हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? टुडे आई हैव कम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द 100 ड्रेसेज. दिस इज फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स and background of this story has already been discussed by me in its first part. So I'm going to tell you about the second part of this story. जैसा कि पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, बताया था आपको कि वांडा पेट्रोन्स्की, शी वाज द विनर ऑफ दैट कॉन्टेस्ट ऑफ ड्रेस डिजाइनिंग which was assigned by her teacher Miss Mason for all the girls in the class. But that day she was not present to see the result as she was the winner. ये यहाँ तक आप पहली स्टोरी में, पहले पार्ट में आपको पता था. Now in second part starts with the class of Miss Mason again, and she has come with a letter, and in that letter, actually that letter was sent to Miss Mason by the father of Wanda Petronsky, and in that letter he has written that Wanda has left the school as they all are moving from that place. They are migrating to another city, and he is hoping that in that place where he is going, वहाँ शायद उसके जैसे नाम वाले, उसके जैसे रहन सहन वाले लोग मिल जाएं, जिससे उसके बच्चों को टीज न किया जाए और वो सब उसमें मिक्सअप हो सके. When all the students came to know about this letter that Wanda Petronsky has left the school, ये सबके लिए असहज था. Especially for these two girls, Peggy and Maddie, it was unbelievable for them, and they were having a kind of guilt in them, क्योंकि Peggy हमेशा उसको टीज करती रहती थी. That day after school, they both decided to meet Wanda, और भागे भागे उसके घर जाती हैं. Boggin Heights, the place where she was living, वो सब सोचती हैं कि हो सकता है वो अभी उसका परिवार गया न हो. वहाँ सब पहुँचती हैं. That was a muddy area, dirty kind of locality was that in which she was living. और ये दोनों जब वहाँ पहुँचती हैं तो that particular house in which Wanda was living, that was locked. Means पूरा परिवार चला गया था. After returning from there, they both were very guilty, very sad, and they are thinking कि वांडा क्या सोच रही होगी उन दोनों के विषय में. So they decide to write a letter for Wanda. अब आप सोचेंगे कि she has gone, then how they will come to know about her address? Yes, लेकिन वो जो है लेटर उनको लिखती हैं सब उसको, और लिखने के बाद वही बॉगिंग हाइट्स में ही जो है उस लेटर को ड्रॉप कर देती हैं. It is to be forwarded to Wanda Petronsky. It was written on the envelope. और उस समय ऐसा ट्रेंड था कि जिसके नाम से लेटर रहता था पोस्ट मास्टर खोजवा के उसको किसी तरह से पहुंचाने की कोशिश करता था. It was the belief. But from that letter no reply has come. तो ये सब सोचती थी कि पता नहीं लेटर मिला नहीं मिला. In that letter they have written कि I hope to new place where you have gone you will be very happy and you will have got a good teacher, good place, good school, all these things. इन सबों ने अपना कोई ऐसा सैड थॉट शो नहीं किया था उस लेटर में. और इस तरह से समय गुजरता गया. आफ्टर फ्यू मंथ्स इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस, एंड अगेन अ लेटर कम्स टू मिस मैसन, दैट टीचर, and she came in the class with that letter. She was having that letter in her hand, और बच्चों से बताती हैं कि this letter has been sent to me by Wanda Petronsky, and I am going to tell what has been written here in this letter. तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं कि वांडा क्या लिखी है उसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वांडा हैज
greeted to that teacher. She has said that to that new place, the teacher whom she has got is not as good as Miss Mason was. कहती है कि जितनी अच्छी आप हैं उतनी अच्छी यहाँ हमारी नई टीचर नहीं है. तो इट वॉज ए काइंड ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दैट टीचर फ्रॉम दैट गर्ल. और आप समझ सकते हो कि एक टीचर के लिए रिस्पेक्ट से बढ़िया तो और कोई चीज हो नहीं सकती. सेकेंड थिंग, शी इज कमिंग एंड शी इज ट्राइंग टू नो, पूछती है कि व्हाट अबाउट रूम नंबर 30, द क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास वर सिटिंग. तो पूछती है कि वहाँ लोग कैसे हैं. आई होप ऑल वुड बी हैप्पी एंड प्लीज्ड. एंड अगेन she wrote that 100 paintings, 100 desks which she has designed, जो बना के दी थी, from them one was green and that is to be given to Peggy as a Christmas gift, and blue one was to be given to Maddie as a Christmas gift. कहा दोनों को जो है एक एक दे दीजिए मेरी तरफ से. It's a kind of Christmas gift to them. तो टीचर इसके बाद जो है उसमें से वो डिजाइन निकालती है और वो एक एक जो है इन दोनों को दे देती है. नाउ पेगी एंड मैडी रिटर्न्स बैक टू देयर हाउस विद दैट डिजाइन. और आने के बाद घर पे बड़े ध्यान से जो है मैडी सोचती है कि आखिर वो कैसा सोचती रही होगी हम लोगों के विषय में. और कम से कम एक चीज दिमाग में उन सबों को अब डिसाइड हो रहा है कि निश्चित रूप से बुरा तो नहीं सोच रही होगी. अगर गलत सोच रही होती तो फिर वहां जाने के बाद और हम लोगों को जो है क्रिसमस गिफ्ट नहीं देती. और उसके बाद जो है वो ध्यान से उसको देखती है, उस पिक्चर को जो डिजाइन की है. तब उसको पता चलता है कि ये तो उसकी खुद की फोटो बनाई है. वो खुद की मीन्स मैडी की. अब वो उस फोटो को, उस डिजाइन को लेकर के दौड़े दौड़े जाती है पेगी के घर और उसको बताती है, यस यू सी योर्स, इसमें तो मेरा फोटो बना हुआ एग्जैक्ट. परहैप्स व्हेन शी वाज फ्रेमिंग इट इन द स्कूल, जब वो थी तब वो जब फ्रेम कर रही थी तभी ये दिमाग में रख के बना रही थी कि हम लोगों को देना है, हम लोगों को ही तो उसमें फ्रेम की है, डिजाइन की है. द सेम थिंग वाज देयर इन दैट पिक्चर ऑल्सो विच वाज गिवन टू पेगी. और दोनों देख के बहुत खुश होती हैं. अंदर से उनको कष्ट होता है क्योंकि उनके अंदर एक गिल्टीनेस रहता है कि जो है उन सबों ने उस बच्ची को टीज किया है, परेशान किया है. बट ओवरऑल दे कम ऑन दिस कंक्लूजन दैट in fact Wanda Petronsky was a very brilliant kind of girl, or originally she is having 100 dresses, because हो सकता है उसके पास 100 dresses ना हो, but ideas which she is having, that is more than that. So students, hope कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी. Thank you for watching the video, and once again I am saying to you that please subscribe this video, and if any query you are having this, then put your question in comment box. I'll try my best to give all your answers. Thank you. Stay blessed. Jai Hind.